Welcome, my dear students. Myself, Ram Gopal Bhatt from Cambridge Kids Garden Senior Secondary School, Sydney. So, you know very well, due to coronavirus, India is completely locked down. School, colleges, gym, theaters, and other facilities are also locked down. So, Cambridge Educational Group thought that we have to start online classes. For this purpose, the team of Cambridge Educational Group started the online classes. It's my first day to shoot this video. In upcoming days, we will improve our facilities. Maybe I hope that this classes name and my posture and my board position, maybe I hope that it's a good. So my dear student, in these days we are starting chemistry, online classes of chemistry from myself, Ram Gopal Bhatt. So my dear students, you know very well, in chemistry portion of class 12th, these are two parts. The first part is, you know very well, the first part is inorganic chemistry, and the second part is organic chemistry. So my dear students, in these days we are starting the second part of chemistry, organic chemistry. In this portal, in this chemistry classes, we will give you the complete chemistry syllabus with previous year's questions with answer and many of exercise questions. So my dear student, connect with me and my classes, the Bhatt classes. Okay, in upcoming days we will start a online portal, YouTube channel, Bhatt classes. Okay, so let's start. So in organic chemistry, organic chemistry, these are 4 chapters belongs to related to organic. First is haloalkane and haloarenes. Second is alcohol, phenol and ethers. Third is aldehyde, ketone and carboxylic acid. And fourth is largest number, 6 marks related to annual exam, that is amines. So today in 40-minute lecture we are starting a first chapter, that name is what? Haloalkanes and haloarenes, or we can say halogen derivatives. Halogen derivatives. So first of all, we will start about the meaning of halogen and the meaning of derivatives. Okay. So first of all, we are starting about the meaning of this term. This term, halogens. You know, in our modern periodic table, the group number 17 elements. What? The group number
17 elements. Group number 17 elements whose what beta? Fluorine, chlorine, bromine and iodine, etc. You know very well. First of all, my dear students, you know very well these group number 17 elements are diatomic elements. It means diatomic elements. It means in a one molecule of these element, minimum and maximum two atoms, minimum and maximum two atoms are bonded to each other by single covalent bond. How's? Fluorine, chlorine, bromine and iodine. You know very well what the symbol of, what the molecular formula of these elements? F2 fluorine, Cl2 chlorine and Br2 bromine, and this is what? I2 iodine. Okay, my dear student. So first of all, you know very well this fluorine atom and this fluorine atom, both two atoms are bonded by what? Single covalent bond. Same like in chlorine molecule, chlorine atom and chlorine atom, both are bonded by single covalent bond. Same as bromine and bromine, both are bonded by single covalent bond. And same as iodine and iodine, both are bonded by single covalent bond. My dear student, we are coming from villages, so maybe I hope that you cannot understand my language. So my dear student, for your convent I use a little bit Hindi also. So जैसा कि मैंने पहले कहा स्टूडेंट आपके लिए कि ये फ्लोरीन के वन मॉलिक्यूल में दोनों के दोनों एटम, क्लोरीन के वन मॉलिक्यूल में दोनों के दोनों एटम, ब्रोमीन के मॉलिक्यूल में दोनों के दोनों एटम और आयोडीन के मॉलिक्यूल में दोनों के दोनों एटम सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड से क्या है? बॉन्डेड है। क्वेश्चन आपका, सर चैप्टर का तो नाम अपना हेलोजन डेरिवेटिव था, उस पर तो आप डिस्कस नहीं कर रहे। बिल्कुल कर रहे हैं बेटा आपके लिए, अब भी आपका जवाब आने वाला है। तो बेटा जी ये जो बॉन्ड है ये किसी स्पेशल कंडीशंस में, चाहे वो हायर प्रेशर हो, चाहे वो हायर टेम्परेचर हो, चाहे वो सनलाइट प्रेजेंट हो, या किसी केमिकल की प्रेजेंट हो, या किसी पेरोक्साइड की प्रेजेंट हो, या डार्कनेस की प्रेजेंट हो, या किसी अदर रिएजेंट की प्रेजेंट हो, ये जो बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाता है। अब किसी भी कोवैलेंट बॉन्ड की ब्रेकिंग आपने क्लास 11th में स्टडी की है। किसी भी कोवैलेंट बॉन्ड की ब्रेकिंग टू टाइप से हो सकती है, जानते हो? फर्स्ट इज होमोलाइटिक एंड सेकेंड इज हेटेरोलाइटिक। फर्स्ट इज होमोलाइटिक एंड सेकेंड इज हेटेरोलाइटिक। होमोलाइटिक में क्या होगा बेटा जी कि ये जो बॉन्ड है ये इक्वल ब्रेक होगा। इक्वल ब्रेक होने से क्या होगा कि इस कोवैलेंट बॉन्ड में छुपे हुए हिडन 2 इलेक्ट्रॉन थे, अपने पता है एक बॉन्ड बनने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 चाहिए। तो एक इलेक्ट्रॉन जो है वो तो इस एटम के पास और एक इलेक्ट्रॉन जो है इस एटम के पास। तो स्पीशीज कैसी बनेगी? स्पीशीज कुछ ऐसी बनेगी बेटा जी, एक एटम एक फ्री इलेक्ट्रॉन, एक एटम एक फ्री इलेक्ट्रॉन। लग गया पता? अगर इसके पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन है तो आपको पता है एक ऐसी स्पीशीज जिसके सिर के ऊपर हेड पर एक फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, ओड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, उस स्पीशीज को क्लास 11th में आपने बेटा एक नेम दिया है, बताओ क्या? दैट इज व्हाट? फ्री रेडिकल्स। क्या बोलेंगे उसे? फ्री रेडिकल्स बोलेंगे उसे। आपको पता है ये तो कि ये फ्री रेडिकल्स नेचर में काफी रिएक्टिव होते हैं, काफी रिएक्टिव होते हैं नेचर में। तो नेचर में काफी रिएक्टिव होने की वजह से ये कैसे ऐसी स्पीशीज से बॉन्डेड हो जाते हैं, और बॉन्डेड होने के लिए इन्होंने किसको चुना? हाइड्रोकार्बन्स को चुना। ये फ्री रेडिकल्स ये घूमते रहते हैं नेचर में,
नेचर में घूमते रहते हैं कि कोई भी इनको एक ऐसी फ्री रूम मिले, कोई फ्री हॉस्टल मिले, कोई फ्री होटल मिले इनको, जहां से ये बॉन्डेड हो सके और एक नया डेरिवेटिव, एक नया कंपाउंड, एक नई स्पीशीज बना सके। आपको मैं जो रियल मिस्ट्री है वो बता रहा हूं आपको मैं। बाकी बहुत सारी रेफरेंसेस बुक है जिसमें लिखा हुआ डेफिनेशन मिल जाएगी आपको। सेकंड केस और बताता हूं आपको बेटा। सेम इसी टाइप से क्लोरीन और क्लोरीन एटम दोनों के बीच का जो बॉन्ड है उसके ब्रेक होने की सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है? उसके ब्रेक होने की सेकंड पॉसिबिलिटी है हेटेरोलाइटिक क्लीवेज। मतलब बॉन्ड ब्रेक होगा लेकिन इस बॉन्ड के जो हिडन इलेक्ट्रॉन्स है इक्वली ब्रेक नहीं होंगे। मतलब इन दोनों एटम में से दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक एटम के पास आ जाए और किसी एक एटम के पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी हो जाए। लाइक दिस, सपोज कीजिए यहां के दोनों इलेक्ट्रॉन ठीक इसके पास आ जाते हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन ठीक इसके पास आ जाते हैं, तो एक एटम जो है वो तो इलेक्ट्रॉन रिच बन जाएगा और एक एटम है वो क्या बन जाएगा? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बन जाएगा। कैसे? देखो जरा एक से। कैसे बनेगा देखो जरा। एक क्लोरीन का एग्जांपल लेके बता रहा हूं आपको मैं। तो इलेक्ट्रॉन ठीक, एक इलेक्ट्रॉन, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गए, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गए, तो क्या हुआ बेटा जी कि इस एटम के पास तो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी नहीं रही बिल्कुल, ये तो इलेक्ट्रॉन रिच बन गया, जिससे इस पर पार्शली चार्ज कैसा आ गया? बोलो बेटा, पार्शली चार्ज कैसा आ गया? नेगेटिव। जबकि इस पर सेकंड वाले एटम पर ये बेचारा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, तो इस पर पार्शली चार्ज कैसा आ गया? पॉजिटिव। मान रहे हो बात? तो ये स्पीशीज जिस पर पार्शली नेगेटिव चार्ज है ये स्पीशीज बन चुकी है। बोलो बेटा क्या कहते हैं इसे अपन? बोलो क्या बोलेंगे इसे? इस स्पीशीज को अपन नाम देंगे न्यूक्लियोफाइल। क्या बोलेंगे? दोबारा मेरे साथ बोलो, न्यूक्लियोफाइल। जबकि ये जो स्पीशीज है जिस पर पार्शली पॉजिटिव चार्ज आ चुका है इसको क्या बोलेंगे बेटा? इसको अपन नाम देंगे इलेक्ट्रोफाइल। तो फर्स्ट केस की मैं थोड़ा आपको रिमाइंड करा देता हूं मैं, ताकि आपके जो माइंड से पीछे स्लिप हो चुका है। राइटिंग का मौका भी दूंगा आपको, लिखवाऊंगा भी आपके साथ साथ में, मतलब आपको नोट्स डिटेक्टिव कराएंगे आपको। क्या बोला मैंने आपको कि किसी भी हेलोजन मॉलिक्यूल में प्रेजेंट जो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है उसके ब्रेक होने के कितने चांस? 2 चांस, होमोलाइटिक एंड हेटेरोलाइटिक। होमोलाइटिक ब्रेकिंग में, इन होमोलाइटिक ब्रेकिंग क्या बना? बोलो बेटा क्या बना था? क्या बना था? बोलो बेटा फ्री रेडिकल्स। और इन हेटेरोलाइटिक क्लीवेज कंफ्यूज मत हो बेटा। क्लीवेज का मतलब ब्रेकिंग। इन हेटेरोलाइटिक क्लीवेज फर्स्ट सिचुएशन क्या बनी अपने पास? बोलो बेटा न्यूक्लियोफाइल। और सेकंड कंडीशन क्या बनी बेटा जी? इलेक्ट्रोफाइल। न्यूक्लियोफाइल को अपन शॉर्ट फॉर्म में किसे दिखाते हैं बेटा? NU, जिस पर चार्ज कैसा दिखाते हैं? नेगेटिव। और इलेक्ट्रोफाइल को अपन शॉर्ट फॉर्म से किससे दिखाते हैं? यस स्टूडेंट, किसे दिखाते हैं? E से, जिस पर चार्ज कैसा होता है अपना? पॉजिटिव। तो क्या बोला मैंने कि ये जो हेलोजेंस होते हैं ये अदर सिचुएशन में ब्रेक होते हैं और ब्रेक होकर के फ्री रेडिकल्स का प्रिपरेशन करते हैं, इलेक्ट्रोफाइल का प्रिपरेशन करते हैं
और क्या बोले तो न्यूक्लियोफाइल का प्रिपरेशन करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। बोलो यहां तक क्लियर हुआ? आगे चले। डोंट राइट फर्स्ट ऑफ ऑल पहले समझेंगे पूरा, फिर लिखेंगे अपन। ओके, अब बात करते हैं कि ये 3 स्पीसीज बन चुकी है, नेचर में घूम रही है। नेचर में घूम रही है कि किसी भी अदर स्पीसीज के साथ बॉन्डेड हो, किसी अदर स्पीसीज के साथ बॉन्ड बनाए और एक नई स्पीसीज, एक नया डेरिवेटिव बनाए। तो चलो बात करते हैं। पहले इरेज कर देता हूं इसे, फिर चलते हैं। तो चलो पहले बात करते हैं अपन सिंपल से। अगर हाइड्रोकार्बन्स की बात चल पड़ी, इनको पीछे में छोड़ना है, उनको साथ रखना है। उनको हेलोजेंस जो रिएक्टिंग रिएजेंट बने, हेलोजेंस जो अटैकिंग रिएजेंट बने, उनकी बात कर रहे हैं अपन। तो जो हाइड्रोकार्बन्स है, ध्यान से पहले देखेंगे तभी कुछ करेंगे। हाइड्रोकार्बन्स अपने पास, जैसा कि क्लास 11th का थोड़ा वो टॉपिक जानते हैं कि हाइड्रोकार्बन्स हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन, फास्फोरस, क्लोरीन, हेलोजेंस, इनके बने होते हैं, पता है अपने को। लेकिन हाइड्रोकार्बन्स क्लासिफिकेशन भी आपने स्टडी किया होगा। तो हाइड्रोकार्बन्स में अपने पास ओपन चेन भी होता है, क्लोज चेन भी होता है, पता रहता है। दोबारा बात नहीं करेंगे स्टार्ट, इनके बारे में अदर कोई वीडियो शूट करेंगे। क्लास 11th रिलेटेड भी अपन वीडियो शूट करने वाले हैं। आज अपना फर्स्ट डे है ऑनलाइन, इस वर्चुअल लाइफ में अपन पहले दिन आए हैं आज। तो वैसे बातें कर रहे हैं आज। तो हाइड्रोकार्बन्स अपने पास बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। तो आज अपन नाम लेने वाले हैं कुछ एक नाम। क्या आप उनको जानते हैं? अगर जानते हैं तो प्लीज कमेंट करें यार, आप कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कर सकते हैं। तो प्लीज माय डियर स्टूडेंट, अगर आप इस फर्स्ट टाइम मुझसे जुड़ने वाले हैं तो प्लीज मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। और 11th 12th नीट, IIT और वहां तक का नॉलेज आप ले सकते हैं। तो हाइड्रोकार्बन्स में अपन स्टार्ट करने वाले हैं कुछ टॉपिक नाम, जिनके बारे में आज बात करने वाला हूं मैं। केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, इन दोनों नामों को अपन बहुत अच्छी तरह जानते हैं। फर्स्ट इज एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन एंड सेकेंड इज एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एलिफेटिक एंड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एलिफेटिक बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, पता है इतना। एल्कीन, एल्कीन एंड एल्काइन, पता है। एरोमेटिक सारे जानते हैं, मेरे वाले इंग्लिश सबको पता है। हालांकि किसी भी कंपाउंड को एरोमेटिक कहलाने का राइट्स तभी है जब वो हक्कल रूल, करो बेटा याद, क्लास 11th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में था हक्कल रूल, हकला के जो बोलता है हक्कल रूल, उसको फॉलो करें। लेकिन क्लास 11th 12th में जहां तक मैंने बच्चों को बताया, सारे बच्चे कमेंट्स बॉक्स में लिखेंगे भी, सर क्या बोलते हो आप एरोमेटिक कंपाउंड्स को। तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जिसमें ये वाली रिंग प्रेजेंट हो, ये वाली रिंग प्रेजेंट, क्या नाम है इसका? बेंजीन, पता है इतना। मतलब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बेंजीन और बेंजीन के डेरिवेटिव। हालांकि ये सही नहीं है, वैसे बहुत सारे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन ऐसे भी होते हैं जो नॉन बेंजीनोइड होते हैं, उनकी बातें नहीं कर रहे हैं। तो आज अपने पास ये एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, इनको लेंगे आज अपन और अपन अपने टॉपिक पे आएंगे आज। ठीक है बेटा, तो चलो करते हैं स्टार्ट। तो एरोमेटिक और एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन पता है अपने को। तो चलो आज अपन एक एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन में अपन लेते हैं अपन। तो अपने पास ये एक एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है जिसे मैं शो कर रहा हूं। ये अपने पास एक एल्कीन है, पता बेटा इतना आपको। अपन क्या कर रहे हैं कि ये जो एल्कीन है, इस एल्कीन का अपन हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन अपन रिप्लेस कर रहे हैं। देखो R यहां पर एल्काइल ग्रुप है, करेंगे इसके बाद भी करेंगे, बिल्कुल टेंशन है ले आप। जिनको एल्काइल ग्रुप का नहीं पता है उनकी बातें डाउन टू अर्थ स्टार्ट करने वाले हैं। जीरो से हीरो बनाने की कोशिश की जा रही है आपको यहां से, जीरो से हीरो। जिनका क्लास 11th का कोई बेस नहीं है, जुड़े, आराम से मिल जाएगा।
R यहां पर अपने पास एल्काइल ग्रुप है, और H और R दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड है बेटा? सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। इसको मैं शो कर रहा हूं एल्केन, एल्केन। इसका मैं हाइड्रोजन एक रिप्लेस कर रहा हूं। अगर एक हाइड्रोजन रिप्लेस होगा, देखो बेटा, तो श्योर सी बात है ये वैलेंसी क्या होगी? यहां पर फ्री होगी। अगर ये वैलेंसी फ्री होगी तो यहां पर मैं एक हैलोजन एटम, जो हो सकता है कोई रेडिकल हो, फ्री रेडिकल हो सकता है, कोई इलेक्ट्रोफाइल हो सकता है कोई न्यूक्लियोफाइल हो, उसको अपन ऐड कर रहे हैं। तो चलो, ये तो पता है अपने को, हैलोजन का जो सिंबल अपने पास वो क्या होता है? X। पता है इतना? क्लास 11 हैलोजन ग्रुप को ग्रुप नंबर 17 पी ब्लॉक, हैलोजन पी ब्लॉक है ना, उसको अपन शो किससे करते हैं? X से शो करते हैं। तो इस X को तो ऐड कर रहे हैं अपन, X यहां पर हैलोजन है, और H को क्या कर रहे हैं अपन? रिप्लेस कर रहे हैं। तो क्या बना बच्चों अपने पास? एक नया कंपाउंड, एक नया डेरिवेटिव बना, एक नया कंपाउंड बना, जो बना किससे? एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन से बना ना। आई राइट हियर वेयर X इक्वल्स टू हेलोजेंस। पता है इतना अपने? X इक्वल्स टू हेलोजेंस। तो ये अपने पास जो नई स्पीसीज बनी है, ये स्पीसीज क्या अपने पास? ये स्पीसीज है, एक्चुअली ये स्पीसीज कौन थी? एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, एल्केन थी। और उस एल्कीन में से आपने एक, जरूरी नहीं है क्वेश्चन आपका, सर क्या एक ही हाइड्रोजन रिप्लेस कर सकते हैं? नहीं, 2 कर दो, नहीं 3 कर दो आप, और चाहो तो उस एल्केन या उस एल्कीन या उस हाइड्रोकार्बन्स में जितने भी हाइड्रोजन है उसको चाहो रिप्लेस कर दो। इट्स अ साइमल्टेनियसली प्रोसेस। मेरा आपका कोई रोल नहीं है, नेचर में अपने आप हो रहा है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, आप कुछ नहीं कर रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं अपन? दीज आर हेलोजन डेरिवेटिव, सो आई राइट हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ एल्केन। अगेन चलो एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन ले लेते हैं, ले ले बोलो। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के लिए मैंने लिया यहां पर, क्या ले रहा हूं देखो जरा, आपकी फेवरेट है क्लास 11 12 बेंजीन ले रहा हूं। इस बेंजीन से मैंने क्या किया? एक हाइड्रोजन रिप्लेस किया, और इसकी जगह पर फिर से आपका वो फेवरेट हेलोजन लगा दिया। हेलोजन कोई भी हो सकता है, रेडिकल हो सकता है, न्यूक्लियोफाइल हो सकता है, इलेक्ट्रोफाइल हो सकता है। तो अपने पास क्या बना माय डियर स्टूडेंट? ये फिर से हेलोजन डेरिवेटिव बन गया। हेलोजन डेरिवेटिव, इट मींस हेलोजन डेरिवेटिव बनने के लिए आप एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन ले सकते हैं, ले सकते हैं सर, एल्केन ले सकते हैं, ले सकते हैं, एल्कीन ले सकते हैं, ले सकते हैं, अल्काइन ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। लीजिए, आप कौन मना कर रहे हैं? एरोमेटिक में बेंजीन ले सकते हैं, बेंजीन ले सकते हैं, बेंजीन डेरिवेटिव ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। तो इट मींस हेलोजन डेरिवेटिव की डेफिनेशन क्या होगी अपने पास? कि अगर अपन हेलोजन को हेलोजन से एलिफेटिक और एरोमेटिक, दोबारा सुनेंगे आप, अगर अपन हेलोजन से एलिफेटिक और एरोमेटिक के हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दे, दोबारा सुनो क्या बोल रहा हूं, हेलोजन से एलिफेटिक और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दे, किसे रिप्लेस कर रहे हैं? हेलोजन से। तो बने हुए कंपाउंड को अपन क्या बोलेंगे? हेलोजन डेरिवेटिव। बोलो बेटा, हेलोजन डेरिवेटिव डेफिनेशन क्या? कि इफ हाइड्रोजन एटम, लिसन अगेन, राइट, यस यू कैन राइट, इफ हाइड्रोजन एटम is replaced from halogen atom in aliphatic hydrocarbon or aromatic hydrocarbon, these are halogen derivatives.
Again, I repeat, those students are writing on just at that time, you can write. If a halogen atom is added in aliphatic or aromatic hydrocarbon by the replacing of simultaneously hydrogen atom, or we can say, so these are halogen derivatives. Okay. Sir, any other examples? Any other examples is what? Suppose I am giving example. I am giving example. Example is what? I am taking alkane. You can take alkane. Alkane is what? You know? Yes, my dear student. After 4 or 5 days, after 4 or 5 days, I will take your name. Okay. So, this is aliphatic hydrocarbon. You know very well. Very common example here, beta. Its name is what? It's alkane, na? Okay. So, its name is what? Ethane. If one hydrogen is replaced and respective halogen is added, what will form? Ethane. So it's a halogen derivative. So what definition of halogen derivative? In halogen derivative, in aliphatic hydrocarbon, one hydrogen atom is gone और उसके बदले में one halogen atom is come. Okay, so it's an exchange offer. One hydrogen गया और उसके बदले में कौन आया? Halogen atom. तो कहने का मीन्स अपना, so same as, अगर अपन सेम एक एरोमेटिक की लेके देखें एक बार अपन, देखो जरा एरोमेटिक एग्जांपल लेके देखें अपन. ओके, ये अपने पास एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है. यू नो वेरी वेल, इसका नेम सबको पता है. इट्स अ मिथाइल बेंजीन. यू नो वेरी वेल, इट्स अ टोलुइन. सबको पता है. अगर अपन, चलो मैं लिख देता हूं यहां पर, मैं इसका नाम मिथाइल बेंजीन. अगर अपन इसे एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर दें, उसकी जगह पर एक हाइड्रोजन, सिचुएशन अलग है, वो बात की बात है. यहां से रिप्लेस होगा, कैसे होगा वो बात की बात बाद में करेंगे. तो इसकी जगह पर अपने पास क्या बना? हेलोजन डेरिवेटिव. सो हेलोजन डेरिवेटिव एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन के भी हो सकते हैं, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के भी हो सकते हैं. तो माइंड में क्या जमा आपके बेटा, कि चाहे एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन लो और चाहे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन लो, उससे हाइड्रोजन रिप्लेस करने हैं और उसकी जगह पर क्या लेके आने हैं? हेलोजन लेके आने हैं. हेलोजन कोई भी लेके आए आप, फ्लोरीन लेके आए, क्लोरीन लेके आए, ब्रोमीन लेके आए, आयोडीन लेके आए आप. हाँ, कुछ सिचुएशन है फ्लोरीन का प्रिपरेशन, फ्लोरीन जो अपने पास डेरिवेटिव है उनका बनना बहुत ही मुश्किल होता है. वो क्यों होता है? वो सारी बातें बात स्टार्टिंग करने वालों के लिए, स्टार्टिंग करने वालों बता रहा हूं मैं. आगे की बातें कंडीशन जिनको आती है वो भी बताएं मुझे, जो सुन रहे हैं उनके लिए बच्चे बता रहा हूं. तो सुन रहे हैं. अब एक बात और, मेरे माइंड में टॉपिक और चल रहा है, थोड़ा ध्यान से देखें एक बार आप. अगर हेलोजन डेरिवेटिव
जैसे अभी भी आपने एल्केन से प्रिपेयर किया था आपने, अगर आप हेलोजन डेरिवेटिव एल्केन से प्रिपेयर कर रहे हैं तो उन हेलोजन डेरिवेटिव को अपन एक नाम दे सकते हैं, क्या? एल्काइल हैलाइड और हेलो एल्केन, एल्काइल हैलाइड और हेलो एल्केन कह सकते हैं। कैसे? जैसे कि अभी भी नाम दिया आपने, ये क्या अपने पास एल्काइल हैलाइड है। क्यों? क्योंकि हेलोजन से कौन सा पार्ट एडेड है? सबको पता है एल्काइल पार्ट एडेड है, तो इसलिए अपने पास एल्काइल हैलाइड है। सेकंड अपने पास अराइल हैलाइड और हेलोरीन। इसमें हेलोजन पार्ट से, हेलोजन से कौन सा पार्ट एडेड होगा? एरोमेटिक पार्ट एडेड होगा, एरोमेटिक। कैसे? जैसे अभी भी देखा था आपने, अराइल हैलाइड। क्यों? तो ये अपने पास कहने का मीन्स, अपने पास हेलोजन डेरिवेटिव अपने पास टू टाइप्स के, अपने पास यहां पर एरिल हैलाइड और सॉरी एल्काइल हैलाइड और हेलो एल्केन और एरिल हैलाइड और हेलोरीन्स। क्लियर? ओके। एक बात और, छोटी सी बात अपने माइंड में आ रही है, हाइब्रिडाइजेशन की बात। क्या हेलोजन एटम इन हेलोजन डेरिवेटिव में जिस कार्बन से एडेड होता है, जिस कार्बन से एडेड होगा उस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन नेचर, और इनमें एरोमेटिक हेलोजन डेरिवेटिव में हेलोजन एटम जिस कार्बन से एडेड होगा उसकी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट वो करने वाले आज। बोलो करें, छोटी सी बात है, ये और दे देते हैं, उसके बाद में आज का अपना फाइनल राउंड, फाइनल जो अपना फर्स्ट जो रिकॉर्ड है, शूट है, वो अपना कंप्लीट होगा। चलो बात करते हैं एलिफेटिक हेलोजन डेरिवेटिव। इनमें हेलोजन एटम इस कार्बन से एडेड है, तो बताओ इस कार्बन में हाइब्रिडाइजेशन स्टेट कैसा होगा? हाइब्रिडाइजेशन स्टेट पता है, करेंगे बात कभी उसकी भी। हाइब्रिडाइजेशन नाम सुना हुआ है, 12th में आए, सबने सुना हुआ है हाइब्रिडाइजेशन। अगर अपन हाइब्रिडाइजेशन देखें तो पहले अपने को सिग्मा बॉन्ड काउंट करने पड़ेंगे इस कार्बन के। देखो एक सेकंड, अपने को सिग्मा बॉन्ड काउंट करने पड़ेंगे। बोलो कितने सिग्मा बॉन्ड? ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा और ये सिग्मा। बताओ कितने सिग्मा हुए? कितने हुए? 4। कोई एलपी वेलपी नजर आ रही है इसके पास, इस कार्बन के पास? देखो जब कोई दिक्कत कर रहा है तो मैं दिखा दूं आपको। मैं इस कार्बन की बात कर रहा हूं जिसपे स्टार लग रहा है, ये वाला। इस कार्बन में कितने सिग्मा बॉन्ड? 4 सिग्मा। और एलपी कितने? 0। आंसर कितना है अपना? 4। 4 से हाइब्रिडाइजेशन बोलो कौन सा हुआ अपना? sp3। पता है इतना? तो यानी कि एलिफेटिक जो हेलोजन डेरिवेटिव्स होते हैं, या अल्काइल हैलाइड जिन्हें बोलते हैं अपन, या हेलो एल्केन्स भी जिन्हें बोलते हैं अपन, उनमें हेलोजन एटम जिस कार्बन से डायरेक्टली लिंक्ड होता है उस कार्बन की नेचर होती है sp3 हाइब्रिडाइज्ड। sp3 हाइब्रिडाइज्ड। क्लियर? सेम एज अगर अपन बात करें देखो जी, ये अपने पास एरोमेटिक हेलोजन डेरिवेटिव है जिन्हें अपन हेलोरीन्स भी बोलते हैं या अराइल हैलाइड्स भी कहते हैं जिन्हें अपन। इनमें हेलोजन एटम जिस कार्बन से लिंक्ड है, इस कार्बन की बात कर रहा हूं मैं, देखो जरा इस कार्बन के पास कितने सिग्मा? 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा। क्या ये सिग्मा है बेटा? ये सिग्मा तो नहीं है, ये तो पाई है।
तो बोलो यहां पर कितने सिग्मा, 3 सिग्मा। एलपी कोई है नहीं है, तो बोलो आंसर कितना, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ये दोनों में डिफरेंस है बेटा, नोट करने वाली बात है। इन एलिफेटिक हेलोजन डेरिवेटिव्स, हेलोजन एटम is linked to, halogen atom is linked to sp3 hybridized carbon, but in aromatic halogen derivative, halogen is attached to sp2 hybridized carbon. Okay, so my dear student, it's just introduction of halogen derivatives, alkyl and aryl halides. It's just introduction. In further classes we will study other topic of this chapter. So my dear student, stay home, be safe and protect from this disease coronavirus. Okay, so thank you all of you.